हेलो बच्चा लोग। तो हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने फॉरवर्ड चार्ज को शुरू किया था। ठीक है, और उसी से हम लोग आज अभी कंटिन्यू करेंगे। सो इन जनरल हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13, दैट इज टू इन फॉरवर्ड चार्ज. It will be depending on whether invoice is issued within time limit, yes, or it is not issued within time limit, means no to different. And if this method A and method B are not applicable, then we take time of supply as date of entry of service in the recipient's books of account. At the same time, we have studied time limit or due date for issue of invoice of service under section 31. What is the general rule? What is the rule in the case of banking companies or insurance companies or financial institutions? How you are going to issue the invoice in the case of cessation of supply of services before completion, and in the case of continuous supply of services. Based on this, we solved few questions as well. Now, if you look at we are in the forward charge, it's only, we are not going to proceed to the other category. I wanted you to study the forward charge first and then come to this special exceptional category. Now what is the exceptional category? Let's try to understand this now. So in forward charge, that is to of forward charge of what? Services. Whatever events which we are looking at, there is one common event, that is date of receipt of payment. Either we are checking date of issue of invoice, that is DOI, or date of receipt of payment, that is DORP, or we are checking date of supply of services, that is DOS, or date of receipt of payment. That means this date of receipt of payment is one event available at both the places. So in the case of services and forward charge, in the case of services or forward charge, wherever we receive any kind of payment, let us say we received advance payment or advances against bill. So for that particular advance, we are supposed to identify time of supply as date of receipt of payment is available with us. And for that particular advance, we are supposed to discharge the GST liability. Till now, what we have studied. Now imagine a scenario. Imagine a scenario. Let us take the example of telecom operator or mobile service provider. General, we can take example of any kind of service provider. I am taking mobile telecom operator or mobile operator, यानी कि जो वोडाफोन, जियो या एनी अदर काइंड ऑफ मोबाइल की सर्विस आप यूज करते हो, एयरटेल फॉर द टाइम बिंग, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस. सो एक टेलीकॉम ऑपरेटर ने क्या किया, एक पोस्टपेड मोबाइल का इनवॉइस इशू किया. ठीक है, तो इसने क्या किया, एक पोस्टपेड बिल इशू किया on, let us say, 29th April for rupees 449. 449 का इसने बिल इशू किया. जो भी इसका रिसिपिएंट था, what he did against this bill, रिसिपिएंट यानी जिस किसके भी नाम पर ये बिल था, पेड rupees
550। अब रिसिपिएंट ने क्या किया, इस बिल के अगेंस्ट में 550 रुपए पे कर दिए। ठीक है, दैट इज ओके, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने राउंड ऑफ करके 550 रुपए पे कर दिए और बोला कि भाई 1 रुपया अगले बिल में सेटल हो जाएगा, तो राउंड ऑफ करके आई विल बी पेइंग 550 रुपीज। अब ये जो 550 है इसका ब्रेकअप कैसे है, ये जो 449 है दिस इज अगेंस्ट दिस इनवॉइस, बराबर, एंड देयर इज एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1, 1 रुपए का एडवांस पेमेंट है। अब ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके लिए पंगा ये 1 रुपए का है, उसके लिए पंगा या जो प्रॉब्लम है दिस फॉर दिस एडवांस ऑफ ₹1, उसके प्रॉब्लम क्या है, 1 रुपए का जो इसको एडवांस मिला वो इसके लिए प्रॉब्लम है। ये इसके लिए प्रॉब्लम क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो 449 है इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी वॉट एवर वॉज दैट, ये जब इसने बिल इशू किया उस समय उसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अब जब 1 रुपए का इसको एडवांस मिला तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो आ चुका है जिस किसी भी डेट को मिला था, तो ऑन दैट डे ही इज सपोज टू डिस्चार्ज जीएसटी ऑन दैट ₹1 इफ वी डू नॉट स्टडी द एक्सेप्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टेलीकॉम ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उसके पास में तो थाउजेंड्स ऑफ एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स होंगे, हर एक बंदे ने अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा एडवांस देते गया तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर अपना बिजनेस करेगा क्या, हर एक एडवांस के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करके उसको डिस्चार्ज करने के लिए सोचता बैठेगा। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम टू दिस टेलीकॉम ऑपरेटर। टू address this kind of problem, to address this kind of problem we are going to study this specific provision. To address this kind of problem we are going to study this specific provision. So what does this provision says, this provision says when amount not in excess of ₹1000 is received, यानी अगर आपको 1000 रुपए तक का अगर एडवांस मिलेगा, when amount not in excess of ₹1000 is received, the time of supply in respect of such excess at the option of the supplier shall be date of issue of invoice or date of such invoice. यानी for advances up to ₹1000, नॉट इन एक्सेस ऑफ बोला ना, यानी कि 1000 रुपीज तक के एडवांसेस के लिए ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस है ही हैज ऑप्शन द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ सच इनवॉइस। इन ऑप्शन क्या है, ये जो 1 रुपए का जो एडवांस मिला है भाई इसका टाइम ऑफ सप्लाई आप लो जब आप इसका इनवॉइस इश्यू करोगे इन द नेक्स्ट मंथ, तब आप उसका टाइम ऑफ सप्लाई ले रहे हो। मतलब एडवांसेस अप टू ₹1000 ओनली, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के एडवांसेस के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो फॉर एडवांसेस अप टू ₹1000 time of supply can be at the option of supplier सप्लायर के पास में ऑप्शन अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इट कैन बी, पहला ऑप्शन क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, यानी जब एडवांस मिला वो डेट, एक तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। और
और करके अगर सप्लायर चाहे इफ सप्लायर वांट्स इट कैन बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सच एडवांस। तो आपको ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ये आपको ज्यादा ध्यान से याद रखना है कि 1,000 रुपए के एडवांस तक के वो जो बिल इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको एडवांस मिला। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए कि 449 का टाइम ऑफ सप्लाई, तो जब आपने बिल इशू किया होगा तब आपने ले लिया होगा, आपको मिले 550। तो 449 का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज डन। ये जो 1 रुपए का जो एडवांस मिला, अगर सप्लायर चाहे, यानी कि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो सप्लायर है, अगर ये चाहे तो जब एडवांस मिला उस समय उसका टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर ले एज पर द नॉर्मल रूल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। या फिर ये बोले कि मैं इसका बिल तो अगले महीने में इशू करने वाला हूं ना, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सच एडवांस। बट ये ऑप्शन अवेलेबल है ओनली एंड ओनली फॉर एडवांसेस अप टू ₹1,000 के लिए। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर एडवांसेस अप टू ₹1,000। यानी 1,000 के ऊपर का अगर एडवांस होगा तो ये जो ऑप्शन आप ले रहे हो कि टाइम ऑफ सप्लाई उस पर्टिकुलर एडवांस का जब मैं इनवॉइस इशू करूंगा वो लेना है, वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। जैसे 1,000 रुपए के ऊपर का आपको एडवांस मिलेगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एडवांस इटसेल्फ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऊपर का जो नॉर्मल रूल जो हमने पढ़ा है, ये जो लाइन के ऊपर का जो नॉर्मल रूल हमने जो नॉर्मली पढ़ा है वो तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और 1,000 रुपए तक ये जो चिंदी पिंदी जो चिंटू पिंटू जो एडवांसेस मिलते हैं उसके लिए सिर्फ ये एक सेपरेट स्पेसिफिक रूल आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर में छोटे छोटे 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 50 रुपीज, 100 रुपीज के एडवांसेस के लिए मगजमारी करनी पड़ेगी बिजनेसमैन को। तो बोलेगा मैं बिजनेस करूं या जीएसटी का कंप्लायंस करते बैठे। ठीक है ना? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर आपको जरूरत है तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज का ये जो चार्ट बनाया, टेलीकॉम ऑपरेटर का जो एग्जांपल लिया, आप चाहो तो ये एग्जांपल भी कॉपी कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्रोविजन। अब हम बढ़ते हैं इसी पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन 10 क्या कहता है? A telephone company received ₹5,000 against an invoice of ₹4,800। 4,800 रुपए के इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको 5,000 रुपए मिले हैं, यानी 200 रुपए एडवांस मिला। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिया, यही आंसर आप कॉपी कर सकते हो। द एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹200 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट इनवॉइस। ये जो 200 रुपीज का जो आपको एक्सेस एडवांस मिला है या एक्सेस अमाउंट मिला है, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट इनवॉइस। आप चाहो तो उसको नेक्स्ट इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट करो, और अगर आपके मन में कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है गवर्नमेंट के लिए और जीएसटी के लिए, तो जब 200 रुपए का आपको एडवांस मिला है तभी आप उसका जीएसटी डिस्चार्ज करो। ठीक है, सो इन जनरल most of the suppliers will follow this option, right? Will follow this option, most of the suppliers will follow this particular option। क्यों? क्योंकि एक तो इजी टू कंप्लाई है और फायदा भी है कि भाई जीएसटी इसका बाद में भरना, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एडवांसेस वाला ऑप्शन, राइट? सिमिलर प्रोविजन गुड्स के लिए भी है। गुड्स के केस में भी 1,000 रुपए के एडवांस तक के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट हमने गुड्स में ये प्रोविजन पढ़ी ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि वहां पर हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था बड़ा वाला, जहां पर हमने सारे ही एडवांसेस को इग्नोर करना चालू कर दिया फॉरवर्ड चार्ज के लिए। तो फिर वहां पर ये पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज गुड्स के केस में तो जितना भी एडवांस मिल रहा है फॉरवर्ड चार्ज में उसे कंसिडर ही नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दैट नोटिफिकेशन ऑफ 66 ऑफ 2017 जो हमने गुड्स में पहले ही पढ़ा है। इसलिए हमने गुड्स में ये पर्टिकुलर ऑप्शन पढ़ा नहीं, अदरवाइज वो ऑप्शन गुड्स में भी अवेलेबल है। अगर आप नोट्स देखते हो तो नोट्स में भी हमने ये वर्डिंग्स यूज की है, बट वहां पर उसको क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसका वहां पर रिलेवेंस नहीं था। यहाँ पर क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेवेंस है, और उसके साथ में आपको गुड्स में उसका रिलेवेंस क्यों नहीं है वो भी हमने लिंक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एंगल्स। ठीक है,
तो अगर आपको नीड है, जरूरत है, तो आप इसे एक बार क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। Now what we are doing? Now we are proceeding with to identify what we are trying to identify. Time of supply of services under reverse charge mechanism. अब हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज mechanism. So before I make a chart of this particular provision, हम लोग क्या करेंगे, एक बार सिर्फ ये प्रोविजंस को रीड कर लेंगे। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट यू दैट कि आप लोगों के दिमाग में इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा रेडी रहे। बिकॉज जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है, बट रिवर्स चार्ज में ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है, यानी कि ये जो टॉस है, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये रिसिपिएंट करेगा, जो कि मैंने गुड्स में एग्जाम्पल्स के साथ में भी एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, तो वहां से आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें जानने के लिए थोड़ा अगर बैकग्राउंड रेडी रहेगा तो चार्ट भी आपको इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मोडस ऑपरेंडी शुड बी, पहले आप पूरा वीडियो देखोगे, प्रोविजंस को एब्जॉर्ब करोगे, देन वापस से वीडियो को प्ले करोगे और चार्ट्स और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप क्या करना शुरू करोगे? कॉपी करना शुरू करोगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमने क्या कहा? रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 13। ठीक है, अब इसमें जो एक रूल है, इसमें हम इसको दो अलग अलग पैरामीटर्स में पढ़ते हैं। एक स्पेसिफिक रूल है फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मीन्स देयर इज वन स्पेसिफिक रूल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज from your associated enterprise which is located outside India. Associated enterprise का आप जनरल वे में मीनिंग समझ सकते हो कि आपका रिलेटेड पार्टी है। अदरवाइज अगर आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज का डेफिनेशन पढ़ना है तो इनकम टैक्स लॉ में ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल टैक्सेशन जब आप फाइनल में पढ़ोगे, वहां पे फर्स्ट वर्ड आएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अगर आपको इसका डेफिनेशन पढ़ना है ओनली फॉर द नॉलेज से, तो आप गूगल कर सकते हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसका डेफिनेशन वहां से आप पढ़ सकते हो। वहां पर जो डेफिनेशन दिया है, सेम डेफिनेशन इज यूज्ड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज हियर एज वेल, बट हमें उसका डेफिनेशन इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में समझ लो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब आपका रिलेटेड पार्टी और यूर रिलेटिव, चाहे वो आपका होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी हो या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो या एनी अदर काइंड ऑफ डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग पावर अगर उसके आपके ऊपर है तो ये जो जनरल रूल पढ़ रहे हैं हम, दिस जनरल रूल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। So time of supply for such service will be earlier of the following. पहला date of payment, यानी as a recipient आप कब पेमेंट कर रहे हो वो डेट, या फिर दूसरा डेट immediately following 60 days from the issue of invoice, यानी कि 61st day. And if it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, then time of supply will be date of entry of service in the books of account of the recipient of supply. अगर आप A and B से time of supply आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो time of supply रहेगा date of entry of the service in the recipient's books of account। ठीक है ना? और date of payment by recipient का मतलब सेम है, as per is date of payment as per recipient's books of account or date of debit in recipient's bank account, whichever is earlier।
लेकिन ये रूल कब अप्लीकेबल नहीं है? दिस रूल इज आर नॉट अप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये जो हमने पढ़ा डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे और ये रिसिपेंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री, ये रूल अप्लीकेबल नहीं है फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज बाय योर फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर से इंडिया में फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब आपके रिलेटेड पर्सन से, तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। So in the case services received from an associated enterprise located outside India, then time of supply will be the date of payment for the service or date of entry of the service in the books of account of the recipient, whichever is earlier. Confused? Let's try to study it by way of chart. तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अगर हमें पढ़ना है तो फर्स्ट instance what we can say, we have one general rule. मैं एक ये जो पहले रूल को मैं नाम देता हूं जनरल रूल, and we have one specific rule for import of services from अब सर्विसेज किससे इंपोर्ट कर रहे हो? फ्रॉम यूर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? AE। ठीक है? ओके, in these two different parameters we are going to study these rules। ठीक है, अब जनरल रूल में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज in reverse charge mechanism will be earlier of below। ओके, नंबर 1 ए क्या है? डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट एज ए रिसिपिएंट आप पेमेंट कब कर रहे हो अपने सप्लायर को, वो डेट। या फिर बी 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के बाद में 61st डे, whichever is earlier, यानी डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया, डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। बराबर है? लेकिन इफ but there is one problem. That problem says what we say, if time of supply cannot be identified as per
above rules, then time of supply will be, अगर आप ऊपर दिए गए रूल से टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ एंट्री of service in recipients books of account. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कहा इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई by using these parameters, then time of supply will be date of entry of the service in the books of account of the recipient of the supply, right? So if you are unable to identify time of supply as per above rule, then it will be date of entry of service in the recipient's books of account. Okay, so if you do not have date of payment by recipient or 61st day from date of issue of invoice, then it will be date of entry of service in recipient's books of account. Okay, now time of supply in the case of import of services from associated enterprise will be, so in this case time of supply will be earlier of below. Again the rule is reverse charge mechanism. So under reverse charge mechanism, in this particular case where you are importing services from your associated enterprise which is situated or located outside India, it will be earlier of below. Number A, date of payment by recipient, और नंबर बी डेट ऑफ, देखिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज में एक अच्छा वर्ड यूज किया उसने, और नंबर बी डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट. डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन recipients books of account. तो रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस की एंट्री का कब दिखाएगा, दैट डे. सो इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ बिलो डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट. सो व्हाट डज इट मीन? ये जो जनरल रूल अभी हमने पढ़ा है, ये जो जनरल रूल अभी हमने पढ़ा है, ये अप्लीकेबल कब होगा? ये अप्लीकेबल कब होगा? दिस जनरल रूल व्हेन इट विल बी अप्लीकेबल. So this general rule will be applicable in multiple scenarios. पहला, all kinds of domestic transactions. So what I will do, I will write here. So this general rule will be applicable in, this will be applicable in all kinds of domestic transactions under, those are taxable under reverse charge mechanism. Those are taxable under reverse charge mechanism, right? All kinds of domestic transaction. फिर चाहे वो आप सर्विसेज अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ले रहे हो या फिर अपने नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ले रहे हो, राइट? सो ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए ये जनरल रूल एप्लीकेबल रहेगा. दे फिर वेदर, चाहे वो वेदर इट इज, वेदर
it is from AE यानी कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज और नॉन AE यानी कि नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज और नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो किसी भी तरीके के डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए आप ये जनरल रूल अप्लाई करोगे। ओके, एट द सेम टाइम ये जनरल रूल एक और सिनेरियो में एप्लीकेबल रहेगा जब आप when you are doing import of services from when you are importing services from non-A, उस केस में भी आपको जनरल रूल अप्लाई करना है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो भी है, यानी जितना भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है इंडिया में, यानी इंडिया के बाहर से अगर आप इंडिया में कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है ना, जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चार्ट वगैरह जब पढ़ने की हम कोशिश करेंगे तब हम इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल रूल और इन जनरल पार्लेंस यू कैन से कि ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी इंडिया में जितनी भी सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर रिसिपिएंट को यानी कि इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द रिसिपिएंट। तो जितनी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, वो कवर्ड है। मतलब अगर मैं कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया के बाहर से इंडिया में एंड इफ आई एम इंपोर्टिंग दोज सर्विसेज फ्रॉम माय एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अगर मैं उनको मेरे एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट, यानी मैंने जब पेमेंट किया वो डेट, या डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन रेसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस की एंट्री का डेट। लेकिन वही अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम माय नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये जो जनरल रूल में हमने लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम माय नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो फिर ये जनरल रूल लगेगा कि एज अ रेसिपिएंट मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर ये इवेंट अवेलेबल नहीं है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री की डेट। मतलब जनरल रूल सारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, वेदर चाहे वो मेरे एई से है या नॉन एई से है या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम नॉन एई से एप्लीकेबल है। हो सकता है आपको ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, इट इज पॉसिबल। सो इन सच केस आपने क्या करना चाहिए, बैक जाना चाहिए, वीडियो को फिर से सुनना चाहिए, चार्ट, नोट्स, वर्ड्स व्हाटएवर वी हैव रिटन कॉपी करना चाहिए और उसे आराम से पढ़ के एनालाइज करना चाहिए या फिर एब्जॉर्ब करना चाहिए, एंड देन फिर आपने आगे बढ़ना चाहिए जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, so please do that and then proceed with the practicals. So time of supply of services under reverse charge mechanism, एक है जनरल रूल। जनरल रूल अप्लीकेबल कब है, ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस दोज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज रहे या फिर बिटवीन नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज रहे। दिस जनरल रूल इज अप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो in the case of this particular general rule, time of supply will be earlier of below, date of payment by recipient और 61st day from date of issue of invoice। अगर आपके पास में date of payment and 61st day अवेलेबल है तो in A and B whichever is earlier, अगर A and B में से कोई एक इवेंट अवेलेबल है then that event itself is your time of supply। लेकिन अगर आपके पास में इवेंट नंबर ए भी अवेलेबल नहीं है और एट द सेम टाइम इवेंट नंबर बी भी अवेलेबल नहीं है,
then time of supply will be date of entry of service in the recipient's books of account. रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो पर्टिकुलर सर्विस की एंट्री कब कर रहा है, दैट पर्टिकुलर इवेंट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. बट इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब आपकी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और आप उसके पास से या फिर वहां से आप लोग इंडिया में कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, so you are importing services from your associated enterprise which is situated outside India. In that case, time of supply will be earlier of below date of payment by recipient or date of entry of service in recipient's books of account. साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि all import of services are taxable under reverse charge mechanism. Okay, now let us proceed to question number 11. Determine time of supply from below information, assuming that supply is taxable on reverse charge basis. तो खुद ने बोल दिया कि ये अज्यूम करना है सप्लाई जो है वो टैक्सेबल कब है, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. तो मे फोर द सप्लायर ऑफ सर्विस इश्यूज इनवॉइस फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब मुझे ये भी पता है कि ये सर्विस है, reverse charge mechanism. So I know both the things, that it is time of supply of services, that is to in reverse charge mechanism. So May 4, supplier of service issues invoice for services provided, there is a dispute regarding amount payable and payment is delayed. Okay, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. August 21, payment made to the supplier of service. May 4 इनवॉइस डेट है, August 21 पेमेंट एज अ रिसिपिएंट हमने किया है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो आप लोग एक काम करो, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करो और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो प्रोविजंस है या जो रूल्स है उन्हें अप्लाई करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. रफ में सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकालिए, फिर हमारे आंसर से उसको आप कंपेयर कर सकते हैं. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. सो होपफुली आपने इसे सॉल्व किया है and you have your answer available with you. Now let us try to identify time of supply in this particular question. Okay, so we are studying time of supply of services, those are taxable under reverse charge mechanism. Okay, let's try to solve this particular question. So हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई of services अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको याद है क्या, 13 है सेक्शन, देखिए अंडर सेक्शन 13, 12 तो हमने पढ़ लिया. विल बी earlier
ऑफ बिलो, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं। तो मुझे दो इवेंट्स चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट एंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि कुछ बोला नहीं है इंपोर्ट वगैरह, तो जनरल रूल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर लगेगा ए डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट तो एज ए रिसिपिएंट आपने पेमेंट कब किया, देखिए August 21st payment made to the supplier. So this date is August 21st, and second B 61st day from invoice। तो जो भी आपका इनवॉइस डेट है उस डेट से मुझे क्या चाहिए, 61st डे। अब देखिए इनवॉइस कब इशू किया था, व्हेन इज द इनवॉइस इशूड, invoice is issued on May 4, right? So let us write it here, May 4 plus we want 61 day, right? So how it will be done, so we have 27 days of May, because out of 31 4 days are left because May 4 was the invoice issue date. Then we have 30 days of June because June is of 30. I need 61 days, so 30 plus 27 it comes to 57, so this will be 4 जुलाई। देखिए इसका टोटल 61 होता है क्या, 7 + 4 11, यहाँ पे एक आ गया, 2 + 3 5 and 1 61, right? So for me 61st day is July 4. This particular identification is very important in all the questions, and if you are having leap year so you must be aware about how many number of days are to be taken for the February month। अगर लीप ईयर है तो फरवरी महीने के लिए या फरवरी मंथ के लिए आप कितने नंबर ऑफ डेज ले रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए भी आपने केयरफुल होना चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। और लीप ईयर की वजह से आप नोट भी लिख सकते, नोट भी लिख कर आना आपने चाहिए। तो ये क्या आएगा डेट, जुलाई 4, तो दिस विल बी जुलाई 4। So one date is August 21 and another date is July 4, whichever is earlier is July 4। So what you will say, therefore time of supply will be July 4। Okay, so simple is this answer, you can solve it within 5 minutes or even less than 5 minutes, and the good thing is that such questions are asked for at least 4 marks. In general these kind of questions are asked for 4 marks, so easy to solve and easy to get the marks, right? So this is what question number 11 we are going to solve. Now let us proceed to the next question। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए May 4 a German company, so it is a German company, it is a German company, means company is situated in outside India. May 4 a German company issues email informing its associated company ABC Limited of the cost of technical services provided to it, and July 2 ABC Limited transfers the amount to the account of the German company, right? And we are supposed to identify time of supply, right? We are supposed to identify what, time of supply. Now it is
फर्स्ट इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने पहले ही पढ़ लिया है या पहले ही देख लिया है दैट ऑल काइंड्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट दैट टू ये जो क्वेश्चन है इसमें सर्विसेज आर इंपोर्टेड फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज विच इज लोकेटेड और सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, right? So in the case of import of services, in the case of import of services from associated enterprise located outside India, it will be earlier of below events. Date of payment by recipient, as a recipient आप payment कब कर रहे हो वो date, या फिर date of entry of service in the recipient's books of account. Okay, now let us solve this question. Okay, so what we will say, time of supply of services I will write few words here. So what I will do, time of supply of services imported, देखिए इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया आपने, फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, देखिए नहीं एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ना, फ्रॉम योर एसोसिएटेड enterprise, okay, that means your AE will be earlier of below, that is reverse charge mechanism. Okay, so we are here to check two events, one is date of payment by recipient and another one is date of entry of the service in recipient's books of account, कि रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस पर्टिकुलर सर्विस की एंट्री कब दिखाया है. Now let's try to understand this. So A, date of payment by recipient. So as a recipient देखिए आपने क्वेश्चन में आपने पेमेंट कब किया है, July 2 ABC Limited transfers the amount to the account of German company. So our date of payment is July 2. Along with this we need date of entry of service in recipient's books of account, right? So let us check, do we have date of entry of service in the recipient's books of account in the given question? That data is not available. One date is May 4, on this date German company issues email, तो May 4 को जर्मन कंपनी ने ईमेल इशू किया एंड जुलाई 2 को आपने पेमेंट किया, तो रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब किया, ये डेट या ये इवेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट अवेलेबल. देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हमारा, जुलाई 2. सो व्हाट वी विल से, वी विल राइट दस, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी जुलाई 2. दैट्स इट, सिंपल इज दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 11 जो अभी हमने सॉल्व किया वो भी 4 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन भी जो अगर एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया
तो दिस विल बी अगेन आस्क्ड फॉर at least 4 marks, right? The trick here is to identify that issuing of email doesn't mean कि recipient ने अपने books of account में उस particular service की entry कर लिया है. So this is how we are going to identify time of supply of services under reverse charge mechanism. So before we proceed further, यानी ये वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 फॉरवर्ड चार्ज, यहाँ से जो आपने नोटिंग वगैरह करना शुरू किया होगा ये पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? साथ में क्वेश्चंस को भी एक बार रीलुक कर लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को भी देख लीजिए अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस, ठीक है? इफ यू आर डन विद दिस देन आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसे भी ये जो आपने नोटिंग वगैरह किया होगा उसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, साथ में क्वेश्चंस भी देख लीजिए. वंस यू आर डन विद दिस तो फिर आप एक बार टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए. उसके बाद इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू कीजिए. मतलब आपको टाइम ऑफ, इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, अभी तक हमने टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर जितना भी पढ़ा है, जिसके आपने नोटिंग्स वगैरह किया होगा, उन सबको आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी है. और ये रिवीजन करने में या ये रिवाइज करने में यू विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा. मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटे का समय लगेगा उसको रिवाइज करने में, पर वो कर लीजिए. कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर बार बार रिवाइज करने का क्यों बोल रहे हैं, ऐसा ही करो, ऐसा क्यों बता रहे हैं, why it is like this, why this कोलावरी दी. तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ये जो सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सिंपल रूल्स इनको फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फ्यू मार्क्स एक्स्ट्रा इन योर एग्जाम. हम फेस टू फेस तो अवेलेबल है नहीं, तो फेस टू फेस होते तो ये सारा रिवीजन मैं आपका खुद ही करवा देता, लेकिन वीडियो में है, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. क्या आप नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो, चीज़ों को स्लोली देख सकते हो, फास्ट देख सकते हो, अपने कंफर्ट से देख सकते हो. तो आप जब अपना कंफर्ट यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ चीज़ों को इस तरीके से पढ़िए कि वो आपके माइंड में, वो आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाए एट दैट टाइम इटसेल्फ. ओके, सो प्लीज रिवाइज द टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर टिल नाउ. तो होपफुली आपने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर रिवाइज कर लिया है. अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज किया है, इफ यू हैव डन द रिवीजन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी व्हाइल रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. लेट मी टेल यू. आप लोगों ने ये वाला पार्ट भी देखा होगा कि सर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में वी हैव सेपरेट रूल फॉर गुड्स एंड सेपरेट रूल फॉर सर्विसेज, बराबर है. बट इन द केस ऑफ वाउचर्स, रेसिड्यूरी केस, पेनल्टी एंड चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, व्हाट वी हैव अ कॉमन रूल, वी हैव अ कॉमन रूल, राइट. ये भी आप लोगों ने देखा होगा या रीलुक भी किया होगा. So what I am doing now, or what I will be doing right now, I will be just going through the services rules or rules of identifying time of supply in these scenarios जो vouchers etc है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जहाँ पर एक कॉमन रूल ही है. मतलब उसका हम कोई चार्ट वगैरह बनाएंगे नहीं, बिकॉज दैट सेम चार्ट विल बी रिपीटेड हियर. तो आपको एज सच बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक जगह पे पढ़ लिया है कि वो कॉमन रूल है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट ओनली एट वन प्लेस, राइट. रीड वी विल रीड दिस एट बोथ द प्लेसेस. अगर आपको नीड है, इफ यू थिंक दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू टू मेक दिस चार्ट, तो आप चार्ट भी बना सकते हो, किसने आपको रोका है, राइट.
उसी चार्ट को कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड। सो वाउचर्स, so time of supply in the case of vouchers, what will be? The time of supply of vouchers that are exchangeable for service is date of issue of voucher if the supply is identifiable at that time, or the date of redemption of voucher in any other case। यानी कि जब वाउचर इशू कर रहे हैं हम, उस समय आपको ये आइडेंटिफाइबल है कि इंटेंडेड सप्लाई क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर वाउचर से, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी date of issue of voucher। But if you are unable to identify the intended supply from this particular voucher, then time of supply will be date of redemption of voucher। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी का एग्जांपल हमने देखा था in earlier videos when we studied this voucher in detail। Based on this, you have this question 13. What does it say? Best Hospitality Services enters into an agreement with Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited may markets Best Hospitality Services hotel rooms and sales coupon or voucher redeemable for a discount against the stay in the hotel। तो यहाँ पे आपको जो वाउचर मिला है, इस पर्टिकुलर वाउचर को आप यूज कर सकते हो फॉर स्टे इन द होटल। दिस पर्टिकुलर वाउचर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्टे इन द होटल। होटल में रहने के लिए ही ये पर्टिकुलर वाउचर आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स इंटेंडेड सप्लाई फ्रॉम दिस वाउचर इज आइडेंटिफाइबल। Therefore, time of supply will be date of issue of voucher। ठीक है। So what we will say? हम क्या लिखेंगे इसका जवाब मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग एक बार अच्छे से लिख लीजिए। सो व्हाट वी विल से, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर विल बी एज अंडर। सो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज अंडर। ए लिखना है उसमें, if intended supply is identifiable, then date of issue of voucher। B, in any other case, date of redemption of voucher। उसके नीचे, in this case, since voucher is redeemable only for stay in the hotel, time of supply will be date of issue of voucher। स्टोरी क्लोज। ठीक है ना। देन रेसिडुअल केस, अगेन रेसिडुअल केस विल बी applicable only when, residual case will be applicable only when you are unable to identify the time of supply as per the rules which we studied earlier। If the situation is not covered by any of the provisions discussed above, then time of supply will be determined as per the residual case। अगर आप ऊपर दिए गए सिचुएशंस के हिसाब से, ऊपर दिए गए रूल्स के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी आइडेंटिफाइड एज पर रेसिडुअल रूल। एंड इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न, जीएसटीआर फाइल करने का ड्यू डेट। इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। मतलब अगर आपको रिटर्न्स भरने की रिक्वायरमेंट है, if you have requirements of filing the GST return, then due date of filing those return, or in any other case date on which GST is paid।
Okay, then we have another rule: enhancement of value on account of interest, late fees, etc. for delayed payment of consideration. यानी कि आपने किसी को क्रेडिट पे या उधारी पे कुछ सेल किया है, you sold something to someone on credit and that particular party was supposed to pay the due amount within a specified period, और अगर उन्होंने विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड अगर आपका ड्यू पे नहीं किया तो आपने पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज किया, और उस पेनल्टी एंड इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब है हम ये पढ़ रहे हैं, राइट? सो द प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू by way of interest, late fees, penalty for delayed payment of consideration, यानी कि interest, late fee, penalty for delayed payment of consideration, इसका जो additional value है, main invoice value की तो हम बात ही नहीं कर रहे, it shall be date on which the supplier receives such addition in value. जिस particular date को supplier को addition in value मिलेगा, that particular date will be your time of supply. तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी खत्म होता है। तो हमने पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी पढ़ा, और यहाँ पर जो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ये जो दो अलग अलग सेक्शंस पढ़े, उसमें जो सिमिलर रूल्स है उनके बारे में हमने डिस्कस भी किया। तो some places provisions or words are similar, so we can limit our discussion or we can reduce or restrict our total quantum of studies or total quantum of pressure which we are taking, we can do it. तो एक बार अगर क्विकली देखा जाए कि हमने इस टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में जो हमारा मेजर एजेंडा था उसमें से हमने क्या क्या चीजें देख लिया है, अगर हमें वो देखना है तो let us try to look into that aspect. So in our time of supply, जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि हमें एक सेक्शन 12 पढ़ना है, वी आर सपोज टू रीड और स्टडी और अंडरस्टैंड सेक्शन 12। तो हमने ये सेक्शन 12 को तो पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड इट। वी वर सपोज टू रीड एंड अंडरस्टैंड सेक्शन 13, वो भी हमने पढ़ लिया। And while reading this section 12 and 13, we were supposed to read and understand section 31 for issue of invoice. So we have done it too. So we have done it time of supply of goods, we have done time of supply of services, and we are done with invoice issue rules under section 31. So in section 12, we studied forward charge. We studied due date of issue of invoice for goods under section 31. With regards to goods, we practiced few questions, right? Then after that, or make it note that in the forward charge, remember that particular notification which we studied, refer notification 66 of 2017. You need to be aware with this aspect as well. Then we understood the difference between the reverse charge mechanism and forward charge. सर हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जब इनवॉइस इशू करेगा तो इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करेगा, रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में या गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेगा। Therefore, supplier is supposed to identify the time of supply in the case of forward charge. In reverse charge, recipient खुद होके recipient himself will calculate the GST and he will deposit this into the government treasury and time of supply will be identified by the recipient. So we understood time of supply of goods under reverse charge mechanism. We solved few questions on this and then we studied this entire gamut of rules, what is to be done, how it is to be done. Then after that we understood or we studied time of supply for vouchers.
identifiable, unidentifiable, few examples, solved few questions. Then we studied residual rule. We studied that when due date will be applicable, registered है तो ही due date applicable होगा, otherwise दूसरा date आएगा. We studied enhancement of consideration for delayed payment. So by way of example, we understood that when this particular provision will be hit, for what purpose. We solved few questions on it. Then we also tried to understand what are the different kinds of questions those can be asked with regards to time of supply of goods. Exactly same types of questions can be asked for time of supply of services. Just you have to replace the word goods with the word services. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? Then we studied we started studying time of supply of services. So under different options, under different rules, we studied this. We understood what are the rules of issue of invoice for services, right? Then we practiced few questions. Then we studied this advance up to ₹1,000 ka exception ka rule, right? So you must be aware about this exception as well, right? We solved some questions. Then thereafter we studied, उसके बाद हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जनरल रूल इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एवी के लिए क्या, एई के लिए क्या रूल रहेगा, एंड वी प्रैक्टिस्ड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल. ओके, along with this we discussed about or we studied about the time of supply of vouchers in respect to services. Then a residual rule with respect to services, vouchers, residual case, enhancement of value on account of interest or late fees etc. for delayed payment of consideration with respect to services, that also we understood. And now we need to study time of supply in the case of change in the rate of tax, which is given under section 14. Now we need to understand time of supply in the case of change in the rate of tax, which is given under section 14, but that particular part we will study in our next video. So till then, keep on revising, keep on studying. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 14 के साथ. थैंक यू.